السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ماجد علی خان اور میں ہوں گوہر اشرات۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو مشیر داخلہ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی اب جاری کر دیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ اطلاعات، جیل خانہ جات اور محکمہ داخلہ کے امور دیکھیں گے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو مشیر داخلہ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ اطلاعات، جیل خانہ جات اور محکمہ داخلہ کے امور دیکھیں گے۔ ملک میں بڑے بریک ڈاؤن کے باعث کراچی سمیت کئی شہر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ نیشنل گرڈ میں خرابی کے باعث 6000 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ پاور سپلائی کا پورا سسٹم بیٹھ چکا ہے۔ NDDC نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بھی اب بنا دی ہے۔ کمیٹی وجوہات کا تعین کرے گی اور 4 روز میں رپورٹ بھی پیش کرے گی۔ نیشنل گرڈ میں بڑی خرابی، کئی شہروں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن۔ نیشنل گرڈ میں خلل سے 6000 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکلی۔ کراچی سمیت پورے سندھ میں بتی گل ہو گئی۔ جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں بھی فراہمی تعطل کا شکار ہوئی۔ کراچی کو نیشنل گرڈ سے سپلائی بھی معطل ہو گئی۔ وزارت توانائی نے بریک ڈاؤن کی تصدیق کی۔ بیان میں کہا، جنوبی ٹرانسمیشن سسٹم میں حادثاتی خرابی ہوئی، جس سے متعدد جنوبی پاور پلانٹس مرحلہ وار ٹرپ ہو گئے۔ NDDC نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی میں GM نارتھ، چیف انجینئر، SG نارتھ اور چیف انجینئر آپریشن شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی بریک ڈاؤن کی وجوہات پر 4 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ مستقبل میں اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے سفارشات بھی پیش کی جائیں گی۔ کوشش ہے جلد تمام متاثرہ شہروں میں بجلی سپلائی بحال کریں۔ بجلی کا بریک ڈاؤن حادثہ تھا یا فنی خرابی، جلد معلوم کریں گے۔ لاپرواہی پر تادیبی کارروائی بھی مد نظر رکھی جائے گی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے مزید کہا کہ پارلیمان اگر مجھے ہٹانے کا فیصلہ کریں گے تو قبول کر لوں گا۔ حیدرآباد ہے، اس میں ابھی تک ایشو ہے، لیکن سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کو ہم نے جزئی طور پر دادو تک بحال کر دیا ہے۔ شکارپور میں بھی اس وقت کنیکٹ ہوا ہے۔ سکھر کے جزوی کنیکشن کی وجہ سے کوئٹہ الیکٹرک کمپنی ہے وہ سبی تک اب ریسٹور ہو گئی ہے۔ واقعہ کیسے پیش آیا کہ ہماری کوشش کی وجہ سے ہمیں جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ملک کے شمال کو اس بریک ڈاؤن سے محفوظ رکھا۔ پاکستان کی عوام کے نمائندے جو ہیں اگر اس پر ضرور وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں ضرور لیں۔ ہم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو صرف یہاں یہ بھی ایک اس پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ پاکستان کی عوام کو درست معلومات جتنی جلدی ہو سکے وہ ہم پہنچا سکیں۔ جب یہ حادثہ ہوا اس وقت تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کدھر پرابلم ہوئی ہے۔ 5000 تو ہم نے ریسٹور کر دیا، تو 3000 کی کمی ہے۔ تو اتنی تیز ترین ریکوری جو ہے وہ بھی آئی تھنک کم ہی ہم نے دیکھی ہے۔ ہمارے پاس تو شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، بڑے بڑے طویل، پورے ملک میں شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں۔ تو اگر آدھا ملک بچ گیا ہے، میرا تو خیال تھا آپ مجھے ہار بھیجیں گے، آپ کہتے ہیں میرے ذہن ہائی کورٹ کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد کے الیکٹرک حکام عدالت میں پیش ہو گئے۔ حکام نے عدالت کو بتایا کہ پورے ملک کا نظام بیٹھ گیا ہے، بجلی کی بندش کے الیکٹرک کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس پر جسٹس صلاح الدین پنہور نے استفسار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے الیکٹرک کو ماہانہ 60 لاکھ روپے بجلی کا بل دیتی ہے، بجلی نہیں ہوگی تو عدالتیں کیسے چلائیں گے؟ عدالت نے کے الیکٹرک کو موبائل جنریٹر کے ذریعے بجلی فراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے مزید ریمارکس دیے کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ملک میں بجلی ہو یا نہ ہو، متبادل بجلی فراہم کرنا کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں صبح 9 بجے کے بعد سے بجلی کی بندش سے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے دکاندار پریشان ہیں۔ دکاندار تو اپنی دکانیں بند کر کے گھر چلے گئے، کچھ وہیں بجلی کے بغیر گزارا کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے واجد علی۔ جی واجد بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر میں ٹرانسمیشن سسٹم میں فالٹ آنے کی وجہ سے صبح سے ملک بھر میں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی لاحق ہے۔ گھریلو صارفین سمیت جو کاروباری حضرات ہیں انہیں بھی اس وقت پریشانی لاحق ہے۔ اس وقت میں صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں موجود ہوں، یہاں پر کچھ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ بھائی آپ یہ بتائیے گا، بجلی صبح سے نہیں ہے تو کیسا کام چل رہا ہے آپ کا؟ بجلی صبح سے نہیں، مختلف علاقوں میں نہیں ہے، مارکیٹوں میں بالکل بند جیسے ہو گئی ہیں، اندھیرا ہو رہا ہے، کاروبار ہے نہیں،
जनरेटर का इस्तेमाल करते भी हैं तो पेट्रोल इतना महंगा है तो हम कर नहीं सकते, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान है। घर से निकले तो लाइट नहीं, यहाँ पे आए तो लाइट नहीं है, और महंगाई इतनी है कि पेट्रोल उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हर एक के पास जनरेटर भी नहीं है, इसलिए बहुत तकलीफ और बहुत परेशानी का हम गुजारा हो रहा है। बिजली के बगैर तो देखें पूरी ज़रूरियात ज़िंदगी और सारी चीज़ें गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हम तो कारोबारी लोग हैं, और कारोबार पे यहाँ पर आना और यहाँ पे लाइट ना होना, फिर कस्टमर को डील करना, अंधेरा होना, बड़ी परेशानी है, उससे जो है लाहक हो जाती है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस प्लाजे में काफ़ी सारी दुकानें हैं जिसमें किसी बिजली नहीं है, सुबह से बिजली ना होने की वजह से सब परेशानी में मुब्तला है, सब दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, और कहते हैं कि पेट्रोल भी इतना महंगा हो चुका है जिसकी वजह से जनरेटर का इस्तेमाल करना भी अब मुश्किल है। जी, कराची समेत सिंध में बिजली का बहरान बरकरार है, ताहम धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी गई है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक बिजली के ब्रेक डाउन से कराची को 13 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली की अदम फराहमी के बायस मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए हैं। कैस्को हुक्काम का कहना है कि दादू खुशदार 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन जुज़वी तौर पर बहाल भी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सुबह से कोयटा शहर में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से आज पूरा दिन घरेलू सारिफीन हो या फिर जो दुकानदार हजरातों ने काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मैं एक फोटोस्टेट की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर बिजली न होने की वजह से यहाँ पर दुकानदार भी परेशान है और यहाँ पर आने वाले जो शहरी है वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त दुकानदार से हम बात करते हैं, जानते हैं किन मसाइल का सामना रहा है। जी, क्या कहेंगे, आज सुबह से बिजली नहीं है तो कितनी परेशानी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों का फोटोस्टेट का काम है जो कि बिजली के बगैर मतलब नामुमकिन है, और सुबह से बिजली ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और हमारा बिल्कुल काम भी नहीं हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि इनका यही कहना है कि बिजली ना होने की वजह से इनका काम आज जो है पूरा दिन मुतासिर हुआ है। बिजली ना होने की वजह से खाली फोटोस्टेट नहीं, तमाम जो शोबे जाते कोयटा शहर में वो मुतासिर होकर रह गए हैं, चाहे वो बैंक हो या फिर जो वेल्डिंग की दुकानें हो, वहाँ पर भी काम नहीं होता नज़र आ रहा है। इस हवाले से हमने कैस्को काम से रब्ता किया। कैस्को काम के मुताबिक जुज़वी तौर पर जो है दादू खुशदार से 220 केवी की जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन है उसे बहाल कर दिया गया है, ताहम डीजी खान और लोरालाई से आने वाली 220 केवी की और कोट अदू और ओज से आने वाली जो 220 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी बहाली पे काम जारी है, और यूं ही नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। कोयटा शहर को मुकम्मल तौर पर बिजली की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। जी, दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत का डटकर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुझ पर हर रोज नई FIR कटती है, हर रोज जमानत लेता हूँ, करप्ट होता तो दुम दबाकर मुल्क से भाग चुका होता। मेरे ऊपर केसेस करके ये अपने कानों से निकाल लो, जेनों में डाल लो। जो समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल के या उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा, मैं और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। ये मुल्क का फैसला कुन वक्त है। एक तरफ इन चोरों की, इन डाकों की गुलामी है। अगर हमने इस वक्त जहाद ना की तो इन चोरों की और इनके बच्चों की गुलामी करेगी ये कौम। इनके खिलाफ खड़े होकर जहाद करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। मैं आपको कॉल दूंगा, एक अवाम का समुंदर आएगा तो इंशाअल्लाह अपने आप को हम हकीकी तौर पे आजाद करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को नाअहली के लिए PTI ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आईनी दरख्वास्त पर फैसला होने तक निगरान वजीर आजम और निगरान काबीना तैनात की जाए। PTI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला को आइन से इनहिराफ और हलफ की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया जाए। IG पंजाब को वज़ीर आज़म और वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म देने की भी इस्तदा की गई। वज़ीर आज़म के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। गैर मजाज लोगों को पाकिस्तान के रियासती राज बताए गए। वज़ीर आज़म ने बतौर चेयरमैन कौमी इक्तिसादी कौंसिल के आर्टिकल 90 की खिलाफ वर्जी और लंदन में साबिक नाअहल वज़ीर आज़म और रियासती मुजरिम से मुलाकात करके खुफिया रियासती सियासी और मुआशी मामलात पर गुफ्तगू की है। अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान की पार्लिमानी महाज पर बड़ी कामयाबी सामने आई है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी फंड के क़याम के लिए IPU की जनरल असम्बली में करारदाद पेश कर दी गई है। करारदाद कौमी असम्बली की जानिब से IPU को भेजी गई। इसी पर बात करते हैं इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, बताइएगा करारदाद किसने पेश की है और इसमें क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पार्लिमानी यूनियन जनरल असम्बली में ये करारदाद पेश की गई है और ये करारदाद सेनेटर फारूक एच नाइक ने पेश की है। IPU के 145वें जनरल असम्बली का इजलास रवांडा में हो रहा है और इसमें दुनिया भर से 178 पार्लिमान के वफूद शरीक हो रहे हैं। सेनेटर फारूक एच नाइक ने IPU के जनरल असम्बली के शुरका को पाकिस्तान में हालिया तबाह सैलाब की तबाहकारियों के बारे में आगाह किया और उन्होंने इस बात को बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और मौसमियाती तब्दीलियों से किस तरह से पाकिस्तान जो है वो निमट रहा है और उससे किन किन खतरात का सामना है। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है, इसलिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की मुलाकात हुई है। दोनों कायदीन में जज्बाती गुफ्तगू इस्लामी अख़ुवत और भाईचारे की मिसाल बन गई। फ़लस्तीनी सदर और वज़ीर आज़म एक दूसरे से गर्म जोशी से बगलगीर हुए। महमूद अब्बास का कहना था कि पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारे भाई और बहनें हैं। हम पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन ने सैलाब ज़दगान की जिस तरह मदद की भूल नहीं सकते। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। फ़लस्तीन हमारे ईमान और यकीन का हिस्सा है। खातून जज को मुबैना धमकी और इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर हो गई। अदालत में पेशी के मौके पर चेयरमैन PTI से सहाफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब, आज़म सवाती ने कहा है कि कपड़े उतार कर तशद्दुद हुआ है। इमरान खान ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। खान साहब शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, क्या कहेंगे? आज़म सवाती साहब के हवाले से क्या कहेंगे? आज आज़म सवाती क्या कहेंगे? आप पीछे देखिए, छोड़े बड़ा खान साहब मुल्क को फैशिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। खान साहब, सदर मुमलिकत ने कहा है कि आपने फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का कहा था। आज़म सवाती साहब ने कहा है कपड़े उतारेंगे हम। आज़म सवाती साहब ने कहा है। शर्म की क्या बात होती है? ये कोई शर्म आनी चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि बड़ा डाकू ही बड़ा हुक्मरान है। इंसाफ और कानून गरीब के लिए है। आले शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के आगे इंसाफ भी शर्मिंदा हो गया है। हुकूमत ने अपने केसेस खत्म करा के अपनी सियासी कबर खो दी है। आले शरीफ ने इंसाफ को नीलाम घर में सजा दिया है। अपने ट्वीट में कहा कि पूरी उम्मीद है इस इतवार के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देगा। शफाफ ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक आइनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने अज़्म का इयादा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, कराची में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशन में बुनियादी सहूलियात पर खास तवज्जो दी गई है। हर पोलिंग स्टेशन पर 8 से 10 पुलिस अहलकार तैनात किए जाएंगे। आर्मी और रेंजर्स की तैनाती को QRF के तौर पर होगी।
एनई की 2 इलेक्शन के हवाले से आज हमने ब्रीफिंग की है, तो उस हवाले से बताऊं कि ये 500 तकरीबन 34 पोलिंग स्टेशन जो है वो बन रहे हैं हमें, तो उसमें पुलिस की मुकम्मल नफरी मौजूद है। और मैं जैसे बताया कि 8 से 10 पुलिस मैन है, तो इसमें मुकम्मल नफरी जो है तैनात की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल मैनेजमेंट ECP वो बिल्कुल वाइब्रेंट है, इस सिलसिले में वॉच कर रही है हमारी तमाम एक्टिविटीज़ की। मैंने सबको ये कहा है कि तमाम जो अथॉरिटीज़ है उनको ये सबके साथ यकसा बर्ताव, और कोई भी कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है। इसी पे कंडक्ट की बात करें तो इस सिलसिले में हमने किसी के साथ भी कोई भी नरमी नहीं रखी है। अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स और पुलिस ने कराची में यूनिवर्सिटी रोड अल मुस्तफा ट्रस्ट अस्पताल के करीब मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद जुबैर को डकैती करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान फरहान अली सिद्दीकी नामी शहरी से असलहे के जोर पर लूटमार कर रहे थे। मुल्जिमान को लूटमार करते हुए CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुल्जिमान के कब्जे से 230 बोर पिस्टल, बमा, एमुनिशन, 6 मोबाइल फोन और 1 बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में गुज़िश्ता शब पुलिस चौकी जुम्मा खान खोड़ पर हमला करने वाले दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SSP ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पुलिस ने हमला नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्दों में सिक्योरिटी इदारे का साबिका मुलाजिम भी शामिल है, जबकि इब्तदाई तौर पर दहशतगर्दों ने पेशावर पुलिस पर हमलों की मनसूबाबंदी का एतराफ़ किया है। दहशतगर्दों के ठिकाने से 25 हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोव, पिस्तौल, तेज धार आला, कारतूस, वॉकी टॉकी सेट और सिक्योरिटी इदारों की वर्दी बरामद की गई है। कराची में डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी साख की हिदायत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ 1 दर्जन से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गई हैं। एक बार आपको बताएं कि कराची में डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी साख की हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गई हैं। जी हां, कराची में डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खान की हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात मिसमार भी कर दी गई हैं। कराची में SBCA इन एक्शन है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खबर हुसैन। खबर बताइएगा, किन इलाकों में SBCA की टीम ने कार्रवाई की है? बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कार्रवाई कर रहा है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीमें तश्कील दी गई हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई कर रही हैं। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शरफाबाद में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी जो तामीरात थी उन्हें मिसमार किया गया है। इसी तरह से सदर के इलाके में कार्रवाई की गई है, मलीर के इलाके में कार्रवाई की गई है, जबकि नाज़िमाबाद के इलाके में भी कार्रवाई की गई है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल का कहना है कि जो भी गैर कानूनी तामीरात की इस्तेमाल की जाएगी उनकी रिपोर्ट डेली बेसिस पर हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। ज़ियारत मुक़द्दसा के हवाले से पाकिस्तानी ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना। शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान के वफ़द की इराक़ी सफ़ीर से मुलाकात। ज़ायरीन को दरपेश मसाइल, वीज़ा पॉलिसी, सरहद पर अदम सहूलियात, ज़ायरीन के तिब्बी मसाइल और दीगर मुश्किलात के बारे में आगाह किया गया। इराक़ी सफ़ीर ने वफ़द को ज़ियारत पर जाने वाले ज़ायरीन की सहूलियात की फराहमी में मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा, ज़ायरीन इमाम आली मकाम हमारे मेहमान हैं। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। हल्का 239 में चेयरमैन PTI इमरान खान, पीपल्स पार्टी के इमरान आबदी और किम पाकिस्तान के नई रजा के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मजीद जानते हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल शब्बीर से, जो इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान आबदी के साथ। सुहेल, क्या कहना है इमरान आबदी का? कौमी असम्बली के 2 हल्के उसके लिए इलेक्शन होने की तैयारियां उरूज पे पहुंच चुकी हैं। कराची में 2 हल्के हैं जिसमें NA 239 का हल्का जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुकाबले में
दूसरा इमरान जो है वो मुकाबले के लिए उतरा है, उसका नाम है इमरान आबदी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और यहाँ के इलाके के लोगों के लिए जो है वो खासा जो है वो उम्मीद की किरण बना हुआ है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान आबदी। हम उनसे जानेंगे कि वो आया अपने लोगों को ऐसा क्या देंगे कि वो लोग उनको वोट दें। इमरान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इमरान खान का आपसे मुकाबला है। इमरान खान से मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PTI से मुकाबला है। और उसके बाद इस हलके का 3.5 साल क्या हाल हुआ वो इस हलके के लोगों को पता है। अब फिर 2022 में ज़िमनी इलेक्शन में इमरान नियाज़ी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? हार या जीत एक अलग तरफ है, लेकिन इस इलाके का क्या होगा? इस इलाके के बारे में तो नहीं सोच रहे कि ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, पॉइंट स्कोरिंग के अलावा तो कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इस हलके का इलेक्शन वही समझ सकता है जो यहाँ रहता हो, जिसका ये इलाका हो। तो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स NA 239 में कर रहे हैं। मैंने बिलावल भुट्टो साहब ने दोबारा मुझे टिकट दिया है, इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा और इतवार को इंशाल्लाह बाहर के इमरान को शिकस्त दूंगा। इमरान आदमी के लिए यहाँ पर हर ज़बान पर एक ही अल्फाज था, चाहे खुशी हो, गम हो या किसी भी किस्म का मरहला हो, इमरान आबदी उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो अब देखना ये है कि इतवार का रोज़ इमरान खान के नाम होता है या इमरान आबदी के नाम होता है। जी रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज जारी है। सरकारी मुलाजमीन की कमेटी के इस वक्त हुकूमती टीम से मुज़ाकरात भी जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सौले अब्बासी से। जी सौले, बताइएगा एहतजाजी मुजाहिरीन का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जो सरकारी मुलाजमीन के 3 घंटा तवील हुकूमत से मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए हैं और अभी तक जो डेडलॉक है सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत का वो बरकरार है। बुनियादी तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन के 4 से 5 मुतालबात हैं, जिसमें जो तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा है। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो तफरीक है, यानी एक महकमे में तनख्वाह कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, अब वो इनका मुतालबा है कि वो तफरीक ख़त्म की जाए। इसके अलावा जो मुस्तकिल मुलाजमीन नहीं हैं, जो डेली वेजेस पर मुलाजमीन हैं, उनकी मुस्तकली भी सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात में शामिल है। और ये आपको बताएं कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से सरकारी मुलाजमीन अपने इन मुतालबात के साथ जो है वो हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज रहते हैं। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लेके आज तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तक इनके जो एहतजाजी सिलसिले हैं वो जारी व सारी हैं, मगर अभी तक इनके और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं उसमें कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं आ सकी। आज के इस मुजाहरे के हवाले से आपको बताएं तो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों के मुलाजमीन शामिल हैं, वो इस शायरा दस्तूर पर 3 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद भी कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जबकि डेडलॉक इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान बरकरार है। हमारे नुमाइंदे सौले अब्बासी में तफसीलात बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।